Welcome to the first part of the chapter Life Processes. Now life processes क्या होते हैं? वो बेसिक फंक्शंस जो कि एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी लाइफ इस अर्थ पे. इट्स कॉल्ड योर लाइफ प्रोसेस. So nutrition and respiration, transport and excretion, control and coordination, they all are some of the common examples of all the living organism. ठीक है. Now nutrition क्या होता है? हमने फूड लिया, उसे ईट किया और वी कैन से वी हैव टेकन इन द फूड, हमने उसे कंज्यूम किया, उसे यूटिलाइज किया, तो दैट इज योर nutrition. Okay, now let's discuss types of nutrition. So basically there are two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto means self and trophy means nutrition. So basically self nutrition is called your autotrophic. Okay, so that mode of nutrition in which an organism makes its own food with the help of simple inorganic materials like carbon dioxide, that is CO2, and water, that is H2 present in the surrounding. Example है, best example तो plants ही आते हैं, all the green plants. Why? Because they uses green pigment called chlorophyll to make their food. Now let's discuss heterotrophic nutrition. That is, hetero means other and trophy means nutrition. The others nutrition is known to be as your heterotrophic. Or it is just vice versa of autotrophic. That means it do not make its own food. Okay. Examples can be animals, all the animals. Like now there are three types of heterotrophic nutrition: saprophytic, parasitic and holozoic. Let's discuss them. First of all, saprophytic, also known as saprotropic, is that type of nutrition जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड प्लांट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल फंगाई एंड मशरूम, बैक्टीरिया ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव पैरासिटिक, मीन्स इट derives its food from the body of another living organism. That means it has a host without killing it. For example, roundworm. Now let's discuss holozoic nutrition. Means it is that mode of nutrition in which the complex organic food materials into its body by process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed by the body cells of the organism. For example, human beings, cat, dog, bear, tiger, not tiger, they all come under holozoic nutrition. Okay. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बेसिकली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपने पहले भी सुना होगा काफ़ी टाइम कि वो प्रोसेस होता है बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज बेसिकली ग्लूकोज फ्रॉम whom carbon dioxide and water with the help of sunlight in the presence of chlorophyll is called your photosynthesis. Equation is given, that is carbon dioxide plus water plus light energy gives glucose plus oxygen. Now there is a picture given. ठीक है. Now food basically plants में किस part में बनता है? Leaves में. And how they make food? They make food by combining the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This equation is very important. Do learn it. This also comes in your exam. तो जो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है तो उसके भी कुछ अपने पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सेकंड, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट करता है वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से. यू लर्न दिस इन केमिस्ट्री. दैट इज योर combination reaction. Okay. Third is reduction of carbon dioxide by air to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy. Now क्या क्या conditions होती हैं necessary for the process is first sunlight, जो कि of course sun से provide होती है. Second chlorophyll, this we will learn. Third is carbon dioxide. फोर्थ इज वाटर. सी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलता है एंड रूट से हमें वाटर प्रोवाइड होता है. वाई? बिकॉज रूट क्या करती है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उधर से वाटर लेती है और Okay, so now let's discuss
और वी विल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि ये जो 4 थिंग्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स शो देम बाय थ्रू द एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो कि सनलाइट इज नेसेसरी. ओके, हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया जो जिसमें ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है और उसे कुछ टाइम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सनलाइट में रखा. नाउ अब हमने उसे प्लेस किया एक डार्क रूम में फॉर द 3 days ताकि हम उसके लीव्स को डिस्टार्च कर सकें. ठीक है, मार्क दिस पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देन व्हाट वी विल डू आफ्टर 3 days, टेक द थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल और हमने उसे रैप कर दिया लीफ को इन इट्स सेंटर सो दैट सनलाइट उसके अंदर एंटर ना कर सके. ठीक है, फ्रॉम द साइड्स. नाउ वी विल पुट दिस पॉटेड प्लांट इन द ब्राइट सनशाइन फॉर 3 to 4 days. व्हाट वी विल डू फर्दर, हमने जो लीफ में एल्यूमिनियम लगाया था, एल्यूमिनियम का फॉयल, उसे हमने निकाला और उससे एल्यूमिनियम फॉयल को रिमूव किया और फिर हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर में उस लीफ को पुट कर लिया फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो इससे क्या होगा कि जो लीफ की सेल मेम्ब्रेन होगी वो ब्रेक डाउन होगी. सी क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज कि ऐसा क्यों करते हैं कि हम लीफ को निकालने के बाद बॉइलिंग वाटर में करते हैं, गिव रीजन. सो दिस कम्स, सो प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. ठीक है, अभी हमने उसे बॉइलिंग वाटर में बॉईल किया था. देन व्हाट वी विल डू, हम उसे एक बीकर में डालेंगे जिसमें कि अल्कोहल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और इसे हम वाटर बाथ देंगे. वाटर बाथ मीन्स कि बीकर है, बीकर के उसमें वाटर ऐड करो और फिर जो दूसरा बीकर है जो अल्कोहल कंटेनिंग जिसमें हमने लीफ ऐड करी है उसे हीट करने के लिए उसके ऊपर रख दो एज शोन इन द फिगर. और हम वाटर बाथ क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इफ अल्कोहल इज हीटेड डायरेक्टली ओवर द फ्लेम इट विल कैच फायर, इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट हीट दे रहे हैं. ओके, इससे क्या होगा, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन लीफ में वो रिमूव हो जाएगा. नाउ द लीफ इज ऑलमोस्ट कलरलेस. ओके, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, तो जब ग्रीन पिगमेंट ही नहीं रहेगा तो ग्रीन लीफ की क्या होगी, कोई कलर ही नहीं होगा, इट विल बिकम कलरलेस. ओके, नाउ रिमूव द कलरलेस लीफ एंड वॉश इट थोरली विद हॉट वाटर. अब हमने उससे अल्कोहल के वाटर से उसे निकाला, हॉट वाटर से उसे वॉश किया टू सॉफ्टन इट. अभी तो वो हार्ड हो गया, अब इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए अब हमने उसे पेट्री डिश में प्लेस कर दिया. एंड नाउ drop the iodine solution over the leaf. Just see the diagram. Okay, go through all the steps. Okay, now let's see what we will observe. जो मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ था जिसमें हमने एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऐड लगाई थी, it does not turn blue black on adding the iodine solution, showing that there is no starch present. अगर स्टार्च प्रेजेंट होता तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर को वो टर्न हो जाता, बट सिंस नो स्टार्च इज देयर सो इट विल नॉट टर्न टू ब्लू ब्लैक कलर. ठीक है, नाउ व्हाई इज इट सो, बिकॉज इधर पे सनलाइट रीच तो नहीं कर पाई थी मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ में, सो दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है वेरीगेटेड लीव्स. आई हैव शोन द एग्जाम्पल, इवन आई हैव शोन द फिगर. वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, जो इसका वाइट पोर्शन है इसमें कभी भी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नहीं करता है. वाई, बिकॉज देयर इज नो स्टार्च. और जो ग्रीन पिगमेंट है इसका ग्रीन साइडेड है, उधर पे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है. सो दिस शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. And also leaves make starch as food by photosynthesis. Now let's perform an experiment to show that chlorophyll is also necessary. ठीक है, इसमें हम क्या क्रोटन लीव लेते हैं, CROTON, जो कि पार्शियली ग्रीन एंड पार्शियली वाइट होती है. ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. सो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि originally white part of the leaf does not turn blue black. I have already told you, since no iodine, since no starch is present in the outer part of the leaf. तो inner part of the leaf में जो कि originally green था वो blue black turn हो जाता है उसका color, showing that starch is present. Now let's move further. That is experiment to show that carbon dioxide is नेसेसरी. ठीक है, स्टेप्स इसमें भी हम सेम फॉलो करेंगे, बट द थिंग इज इसमें हमने एक बीकर ले रखा है
जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। वाई? बिकॉज ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सो जो अपर टिप है लीफ की वो किस में है? बीकर के अंदर है और हमने एक नॉब लगा दिया है ऊपर से। ये पॉटेड प्लांट है। ओके, तो जो डाउन बॉटम पार्ट है लीफ का वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म द सेम स्टेप्स एज दैट इन द एक्सपेरिमेंट 1। आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया, तो जो पार्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर था इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। ओके, और जो बॉटम पार्ट था इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। ठीक है, सो अपर पार्ट shows that there is no starch present in it, whereas the bottom part shows that starch is present in it. So these were some of the experiments to show that carbon dioxide and chlorophyll and sunlight is necessary for the process of photosynthesis. And obviously water तो होता ही है, so but we will not perform any experiment for it. Okay, now let's move further. Now let's discuss raw materials for photosynthesis. दो होते हैं, एक तो वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो ऑब्वियसली फ्रॉम द सॉइल हमें मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? नाउ वी नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस पे। अब ईच स्टोमेटल जो पोर होते हैं, जिसे हम स्टोमा भी बोलते हैं, इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। ये फंक्शन इसका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ जब भी वाटर फ्लो करता है टुवर्ड्स द गार्ड शेल दे स्वेल, ओके, एंड दे बिकम कर्व्ड एंड दे कॉज द पोर टू ओपन। ऑन द अदर हैंड जब गार्ड सेल से लूज होता है वाटर, वो श्रिंक हो जाते हैं, दे बिकम स्ट्रेट एंड कॉज या इट क्लोज देयर stomatal pores. So when plant does not need any carbon dioxide and they want to conserve water, stomatal pores are closed. So in other words we can say is कि gaseous exchange in plants takes place through the stomata in leaves. This is an important point, do learn it. The last slide is your site of photosynthesis, that is your chloroplast. ये डायग्राम है, हमेशा आता है, important डायग्राम है, बना देना। लिखते टाइम क्या लिखोगे? देयर इज एन अपर लेयर नोन एज अपर डेमिस, देयर इज पैलिसेड लेयर, फिर जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्पंजी लेयर होती है जिनके बीच में एयर गैप्स होते हैं, देन वी हैव लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, दैट इज स्टोमा, गार्ड सेल्स है, यहाँ से एंट्री होती है फ्रॉम द बॉटम। ओके, नाउ ये 3 साइड्स हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जिसे हम मीजोफिल भी बोलते हैं। ये डायग्राम बना दोगे सफिशिएंट है, और बेसिकली डायग्राम बनाने के लिए ही आता है। ओके।